یسوع مسیح ناصری کے کوی اور قادر نام میں آپ سب کی خدمت میں بہت بہت سلام۔ آپ سب کو یہاں دیکھ کر بہت خوش ہوں، یقیناً آپ بھی ہوں گے۔ خوش ہیں؟ ہیلیلویا ہیلیلویا ہیلیلویا۔ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج ہم نے بڑے جوش و خروش سے حمد و ستائش کی۔ ٹائم آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹائم کس ٹائم مجھے ٹائم ملا، تو پھر اس سے آگے کتنا ٹائم ہوگا۔ مجھے یاد آ رہا تھا، آج میں نے اپنے بھائی سے بات کی، پنجاب میں گاؤں والے بھائی سے، تو بڑا خوش تھے، بولتے ہیں میرا دل خوشی سے بھرا ہوا ہے کہ میں نے آپ کی کافی دیر کے بعد آواز سنی۔ مجھے اپنا بچپن یاد آ رہا تھا کہ جب گاؤں میں ہوتے تھے تو پوری رات عبادت میں گزر جاتی تھی، پھر جب صبح 4:30 5 بجتے تو پھر گاؤں میں ایک ایک گھر میں جا کر ہم دعا کرتے اور مبارکبادی دیتے، یسوع کے پیدا ہونے کی مبارکباد دیتے، ایک ایک گھر میں جاتے۔ تو پھر اس گاؤں کے 2 چھوٹے گاؤں اور تھے جو اسی کے ساتھ رہتے تھے، پھر ہم اس میں بھی جاتے۔ جب ہم ریٹرن ہوتے تو اس وقت تقریباً صبح ہو رہی ہوتی تھی، تقریباً 6 بجنے کے قریب ہوتے تھے، اس وقت تھوڑی تھوڑی روشنی ہونے لگتی تھی، تو پوری رات ایسے گزر جاتی۔ تو ابھی ہمیں تو پوری رات نہیں ہوئی، ابھی ایسا ہی ہے نا، ہم چھوٹے ہوتے تھے، سردی انتہا کی ہوتی تھی۔ بھائی آسم ابھی وہاں سے آئے، ان کو اندازہ ہے کہ وہاں کتنی سردی ہے ابھی، تو سردی کی انتہا ہوتی تھی۔ تو خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، یہاں کا موسم بھی بہت اچھا ہے۔ تو پھر ٹائم کی فکر کرنی چاہیے یا نہیں؟ یہ تو اسی کا دیا ہوا ٹائم ہے۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ کتنے لوگ ہیں جن کو ٹائم ہی نہیں دیا، ٹائم ہی نہیں ملا، اور وہ اس کے پاس پہنچ کے واپس۔ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اس کے پیارے یسوع نام کے لیے، اس نے جس نے آسمان کو چھوڑ کر اس زمین کو قبول کیا اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا۔ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آج کی مناسبت سے ہم کلام مقدس کو دیکھیں گے، جیسا کہ گزرے ایام میں ہم کلام مقدس پہ غور کرتے رہے اور یسوع مسیح کی پیدائش پہ ہی غور کرتے رہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں جتنا اس پہ غور کیا جائے اتنا کم ہے۔ تو ٹائم کافی ہو گیا کیونکہ باقی بھی 1-2 چھوٹے پروگرام ہیں، تو میں چاہتا ہوں بغیر دیر کیے میرے ساتھ نکالیے لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس، اس کا 2 باب 1 آیت سے۔ جی کوئی بھی پڑھنے میں رہنمائی کرے۔ ان دنوں میں ایسا ہوا کہ کیسر اگستس کی طرف سے یہ حکم جاری ہوا۔ جی ہاں، ان دنوں میں ایسا ہوا کہ کیسر اگستس کی طرف سے یہ حکم ان جاری دنوں میں ایسا ہوا کہ کیسر اگستس کی طرف سے یہ حکم جاری ہوا۔ کس کی طرف سے حکم جاری ہوا؟ کیسر اگستس کی طرف سے حکم جاری ہوا کہ ساری دنیا کے لوگوں کے نام لکھے جائیں۔ اصل میں اسم نویسی تھی، لوگوں کی کاؤنٹیبلٹی تھی، لوگوں کو کاؤنٹ کرنا تھا کہ کتنے کے لوگ، کتنی کی آبادی ہے۔ تو اس میں کیا ہوا، یہ اسم نویسی کا حکم جاری ہوا۔ جی یہ کس کی طرف سے ہوا؟ کیسر اگستس کی طرف سے۔ یہ جو کیسر ہے، ابھی ہم اپنے بچوں کا نام کیسر رکھ لیتے ہیں، یہ کیسر کسی کا نام نہیں، یہ عہدے کا نام ہے۔ جیسے پاکستان کے جو سربراہ ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، وہ صدر ہوتے ہیں، اور جو وہاں کے جو بڑے ہوتے تھے ان کو کیسر کہا جاتا تھا۔ کیا کہا جاتا تھا؟ کیسر ہوتے تھے۔ جی جی، یہ پہلی اسم نویسی، ہاں یہ دنیا کی سب سے پہلی اسم نویسی، سب سے پہلی تھی جب لوگوں کو کاؤنٹ کیا جا رہا تھا، ان کے نام لکھے جا رہے تھے۔ یہ پہلی اسم نویسی سوریا کے حاکم کورنیس کے عہد میں ہوئی۔ جی یہ پہلی اسم نویسی سوریا کے حاکم کورینیس کے عہد میں ہوئی،
اور سب لوگ نام لکھوانے کے لیے اپنے اپنے شہر کو گئے. سب لوگ اپنے اپنے شہر کو گئے. تو یوسف جو ہے یہ کہاں کا تھا؟ ناصرت کا. تو یوسف بھی اپنے شہر کو گیا. جی پڑھیے. پس یوسف بھی گلیل کے شہر ناصرت سے داؤد کے شہر بیت لحم کو گیا. جی ہاں، جو گلیل کا شہر گلیل کا تھا. گلیل کے ایریا میں جو شہر تھا اس کا نام کیا تھا؟ ناصرت. ناصرت سے کہاں گیا؟ داؤد کے شہر بیت لحم. داؤد کے شہر بیت لحم میں گیا. کیونکہ جو یوسف تھا یہ داؤد کی نسل سے تھا، اس لیے اپنے باپ دادا کی جگہ پہ نام لکھوانے گیا. جی اس لیے کہ داؤد کے کہاں سے گیا؟ کہاں سے گیا؟ بیت لحم میں گیا. یہ کہاں سے؟ گلیل کے شہر ناصرت سے. ناصرت سے کہاں گیا؟ بیت لحم میں گیا جو یہودیہ میں ہے. جی یہ یہودیہ کے علاقے میں ہے. کہاں سے گیا؟ ناصرت سے گیا ہے. کہاں پہ؟ بیت لحم میں. یہ بیت لحم میں جانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ یہ کیا سبب ہے کہ یہ بیت لحم میں جا رہا ہے؟ اس لیے جا رہا ہے کیونکہ وہ داؤد کے گھرانے اور اولاد سے تھا. کیونکہ وہ داؤد کے گھرانے اور اولاد سے تھا، اس وجہ سے گیا. اچھا، یہ صرف یہی وجہ نہیں تھی. وجہ یہ تھی کہ یسوع مسیح کے بارے میں بہت ساری پیشن گوئیاں کہی گئی تھی. پچھلے سنڈے بھی ہم نے پیشن گوئی کے بارے میں سیکھا. آج پھر صبح ہم نے پیشن گوئی کے بارے میں سیکھا. اور یہ بھی ایک پیشن گوئی تھی کہ یہ بیت لحم کو جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ بیت لحم جو ہے یہ خدا نے اس کو چنا ہوا ہے، کیونکہ اس میں سے ایک سردار نے نکلنا ہے. اس میں سے ایک سردار برپا ہوگا. میرے ساتھ نکالیے میکا 5واں باب 2 آیت. شرابالا رسول رکھا جی جلدی سے. لیکن اے بیت لحم افراطہ، اگرچہ تو یہودا کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے چھوٹا ہے. جی پڑھیے گا میکا 5واں باب 2 آیت. لیکن اے بیت لحم افراطہ، اگرچہ تو یہودا کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے چھوٹا ہے، تو بھی تجھ میں سے ایک شخص نکلے گا. تجھ میں سے ایک شخص نکلے گا. یہ بہت پہلے بتا دیا گیا تھا. یہ پیشن گوئی ہوئی تھی کہ تجھ سے ایک شخص نکلے گا اور میرے حضور اسرائیل کا حاکم ہوگا. جی ہاں. اور اس کا مصدر زمانہ سابق ہاں قدیم الایام سے ہے. جی اس کا مصدر، اس کا شروع زمانہ سابق ہاں قدیم الایام سے ہے. یہ کس کے بارے میں لکھا گیا؟ یہ یسوع کے بارے میں لکھا گیا. لکھا وہ تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے. پریز دی لارڈ. تو اس لیے یہ سبب بنا کہ وہ ناصرت کو جائیں، ناصرت سے بیت لحم کو جائیں، کیونکہ یہ پیشن گوئی پوری ہونی تھی کہ یسوع کے بارے میں لکھا گیا تھا. جی جی پھر جی دوسرے باب میں آئے. لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل کے 2 باب 3 آیت. اور سب لوگ نام لکھوانے کے لیے اپنے اپنے شہر کو گئے. جی بس یوسف بھی گلیل کے شہر ناصرت سے داؤد کے شہر بیت لحم کو گیا جی جو یہودیہ میں ہے. جی اس لیے کہ وہ داؤد کے گھرانے اور اولاد سے تھا، جی تاکہ اپنی منگیتر مریم کے ساتھ جو حاملہ تھی نام لکھوائے. یہ نام تو لکھوانے گئے لیکن اکیلے نہیں گئے، بلکہ اپنے ساتھ اپنی مگیتر مقدسہ مریم کو بھی ساتھ لے کر گئے. جب وہ وہاں تھے تو ایسا ہوا کہ اس کے وضائے چونکہ وہ حاملہ تھی، جب وہ وہاں تھے روح القدس کی قدرت سے حاملہ تھی، تو لکھا ہے کہ وہاں ہی اس کے وضع حمل کا وقت آ پہنچا اور اس کا پہلوٹا بیٹا پیدا ہوا. جی اس کا پہلوٹا بیٹا پیدا ہوا. اور اس نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا، کیونکہ ان کے واسطے سرائے میں جگہ نہ تھی. کیونکہ ان کے واسطے سرائے میں جگہ
ना थी। आज सुबह हमने सराय पे गौर किया, चरनी पे थोड़ा गौर किया, तो इसलिए इसको ज्यादा नहीं इस पे गौर करेंगे। उनके वास्ते सराय में जगह ना थी तो कहाँ रखा? चरनी में। इधर बच्चे को चरनी में रखा जा रहा है, उधर फरिश्ते चरनी की ही बात कर रहे हैं कि एक बच्चे को देखोगे कहाँ पे? चरनी में पड़ा हुआ। इसका मतलब फरिश्तों के इल्म में है कि यीशु पैदा होने के बाद उनको कहाँ रखा गया? चरनी में। जी पढ़िएगा। और उसी इलाके में चरवाहे थे, उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगाहबानी कर रहे थे। और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ। खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ। और खुदावंद का फरिश्ता किन के पास गया? किन के पास गया? चरवाहों के पास। चरवाहों के पास। जी। और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका। जी। और वो निहायत डर गए। जी। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा कि डरो मत। डरो मत। मत। फरिश्ता ने क्या कहा? डरो मत। क्योंकि पहले लोग जब फरिश्ता को देखा करते थे तो वो मर जाते थे। पहले जो फरिश्ते आते थे बड़ी तबाही मचाने आते थे। शायद आपको याद हो, सदूम और अमूरा के लिए 2 फरिश्ते आए थे और उन्होंने तबाही मचा दी थी। फरिश्ते आते थे, तबाही मचाने आते थे, डराने आते थे, इसलिए लोग डर जाते थे। तो यहाँ पे भी यही हो गया, जब फरिश्ता आया तो डरिए, डर गए, कोई मसला बन गया। आज हमारी शामत आई, लेकिन फरिश्ता क्या बोलता है? फरिश्ता बोलता है मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं। डरने की बात नहीं, डरो नहीं। जी बड़ी, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ। मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं। मैं तुम्हारा नुकसान करने नहीं आया, तुम्हें परेशान करने नहीं आया, बल्कि खुशी की बिशारत देने आया हूँ। कैसी खुशी की बिशारत? जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। ये सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं बल्कि सारी उम्मत के वास्ते होगी। क्यों जी? कि आज दाऊद के शहर में जी तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है। किसके शहर में? दाऊद के शहर। दाऊद के शहर में। दाऊद कौन बता रहा है? फरिश्ता बता रहा है गडरियों को, चरवाहों को कि दाऊद के शहर में कहाँ पे? बैतलहम में। दाऊद का शहर कौन सा था? बैतलहम। यही वजह कि वो नासरत से बैतलहम को गए थे जी, क्योंकि वो दाऊद की असल से थे। जी आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ। तुम्हारे लिए कौन पैदा हुआ? मुनज्जी पैदा हुआ। यीशु कब पैदा हुए? यीशु किस वक्त पैदा हुए? रात को, आधी रात को। तो यीशु कहाँ पैदा हुए? बैतलहम में। तो फरिश्ते ने यही खुशखबरी जाके उनको बताई। अच्छा, ये सोचने की बात है भाई जी कि ये फरिश्ता जो है ये उन लोगों के पास क्यों नहीं गया जो किसी और जगह पे, जो शहर में है? ये उनके पास क्यों नहीं गया? क्यों नहीं गया? जो शहर में लोग हैं उनके पास क्यों नहीं गया? क्यों नहीं गया? इसलिए नहीं गया कि शहर वाले सोए हुए हैं, रात का टाइम है, शहर वाले सोए हुए हैं। फरिश्ते किसके पास जाते हैं? जो जाग कर अपनी ड्यूटी देते हैं। वो जाग रहे हैं इसलिए फरिश्ते उनके पास जाते हैं। तो जब हम भी जाग रहे हैं तो फिर रहमत के फरिश्ते आएंगे या नहीं आएंगे? हालेलुया। तो ये फरिश्ता इसलिए इनके पास आया क्योंकि ये जाग रहे हैं, बाकी सो रहे हैं। अभी भी कई के ऐसे लोग होंगे जो बोलेंगे चलो सुबह ही चले जाएंगे, है कोई गल नहीं, फिर सवेरे भी तो जाना ही है ना, सुबह चले जाएंगे, रात को इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है? ऐसा ना, उनके पास वो फरिश्ते भी नहीं आते, ना बरकत के लिए ना हिफाजत के लिए। हमने सीखा हुआ है खुदा ने अपने लोगों के लिए एक फरिश्ता मुकर्रर कर रखा है जो उनके आगे पीछे चारों तरफ से खैमजन होता है और उनको बचाता है। फरिश्ते किसके पास आते हैं? जो जाग रहे होते हैं, जो खुदा का खौफ रखते हैं, जो ईमानदार लोग होते हैं। अच्छा, चरवाहों के पास फरिश्ता इसलिए आया कि साल ब साल
बनी इसराइल कुर्बानी देते थे अपने गुनाहों की। तो जो चरवाहे थे इनको खुशखबरी सुनाई, तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है। कौन पैदा हुआ है? मुनज्जी यानी मसीह खुदावंद, जो कामल कुर्बानी देगा, जिसकी वजह से आइंदा सारी कुर्बानियां मौकूफ हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। आज के बाद तुम्हारे लेले, बकरे, मेंढे सारे ज़िबा होना कुर्बानी की वजह से बंद। हालेलुया। इसलिए आया उनके पास कि उनके जो मेंढे होते थे, बकरे होते थे, उनको कुर्बानी पे कुर्बान कर दिया जाता, कुर्बानी गुजरानी जाती थी। तो इसलिए खुशखबरी इनको दी गई। पहली बात ये जाग रहे थे, अपना फर्ज पूरा अदा कर रहे थे, और दूसरा क्या था, इनके बकरे की के लिए खुशखबरी दी गई, आज के बाद कुर्बानी मौकूफ होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। जी आगे बढ़िएगा। आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद, और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। चरनी में फरिश्ता ये बता रहा है, उधर यीशु पैदा हुआ तो उसको चरनी में रखा गया, उधर फरिश्ता जाके बता रहा है मैदान में, गुडरियों को बता रहा है, चरवाहों को बता रहा है कि एक बच्चे को कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में पड़ा पाओगे। ये कैसा बच्चा है जिसके लिए फरिश्ते आ गए। गाँव में जब बच्चा पैदा होता था तो क्या होता था, या तो मांगने वाले आते थे, भिखारी आते थे, रब ने ਤੁਹਾਡੀ सुन लिए तो सानू भी कुछ दो, को खैर दो, तो या फिर नाचने वाले आते थे। ये कैसा बच्चा है जिसकी पैदाइश में ना कोई भिखारी आया और ना कोई नाचने वाला आया। कौन आ रहा है? फरिश्ते आ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। फरिश्ते खुशखबरी सुनाने कौन आ रहा है? फरिश्ते। खुदा फरिश्तों को इस्तेमाल कर रहा है। अब ये सोचें कि वो कैसा बच्चा होगा जिसको रखने की भी जगह नहीं है, संभालने की भी जगह नहीं है। अगर जगह मिली भी तो कहाँ मिली? चरनी में। ऐसे बच्चे को कौन पूछेगा जिसको रखने की जगह नहीं मिल रही? उस बच्चे को कोई वैल्यू या उसकी कदर दुनिया वाले कोई जानेंगे, कोई मानेंगे? नहीं मानेंगे। जिस बच्चे को जगह नहीं मिल रही रखने की, लेकिन उसके बारे में फरिश्ता फरमाता है वो मौलूद मुकद्दस खुदा ताला का बेटा कह रहा है, वो बुजुर्ग होगा। पहले ये लिखा उसको, वो बुजुर्ग होगा। थोड़ा सा अगर पीछे पढ़े, पहला बाब लूका रसूल की मार्फत लिखेगी इंजील मुकद्दस, उसका पहला बाब 31वीं आयत, तो उसमें लिखा है, और देख तू हमला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना। वो 32वीं आयत, जी पढ़िएगा। लूका रसूल की मार्फत लिखेगी इंजील मुकद्दस, पहला बाब उसकी 32वीं आयत। वो बुजुर्ग होगा, वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। जी हाँ, अगरचे वो उसको चरनी में रखा गया है, फिर भी वो क्या है? बुजुर्ग है। यही तो वजह है कि बुजुर्ग होने की वजह से फरिश्ते आ रहे हैं। जी जी, वो बुजुर्ग होगा और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा। जी हाँ, वो बादशाह होगा। जी 35वीं आयत, और फरिश्ता में जवाब में उससे कहा कि रूह कुदरत तुझ पर नाजिल होगा जी, और खुदा ताला की कुदरत तुझ पे साया डालेगी जी, और इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। जी हाँ, इस वजह से वो मौलूद मुकद्दस होगा। उसकी पैदाइश कैसी होगी? पाक होगी, मुकद्दस होगी। मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि ये फरिश्ता जब आता है तो इसके साथ और भी कुछ होता है। जी पढ़िएगा। और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हम्द करती और ये कहती जाहिर हुई कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। प्रेज द लॉर्ड। पहले एक फरिश्ता आया और उसके बाद फिर क्या हुआ? फरिश्तों की आसमानी लश्कर की एक गिरोह, आसमानी लश्कर की एक ग्रोह में काउंटेबिलिटी नहीं है कि कितने हैं, तादाद जाहिर नहीं।
पहले एक फरिश्ता आके खुशखबरी सुनाता और इसके बाद फिर फरिश्ते ही फरिश्ते, बहुत ज्यादा अनगिनत फरिश्ते। प्रेज द लॉर्ड। यीशु बाप का करोड़ों अरबों बार शुक्र अदा करते हैं। जब हमें मदद चाहिए होती है किसी बदरू के खिलाफ, हम बोलते हैं खुदावंद यीशु तू अपने लोगों की मदद के लिए फरिश्तों को भेज, या रब्बुल अफ़वाज फरिश्तों को भेज। तो जब पूछते हैं ना कितने हैं, तो पता क्या बोलते हैं? गिने नहीं जाते, अनगिनत हैं, गिने नहीं जाते। तो यहाँ पे भी वही खुदा का शुक्र अदा करते हैं, खुदा अपने वादों को पूरा करता है। यहाँ पे कितने फरिश्ते हैं? गिने नहीं जा रहे। फरिश्तों का ग्रोह है और कर क्या रहा है? वो कुछ बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं जी? आलम बाला पर खुदा की तमजीद। जी हाँ, वो बोलते हैं आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो, आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो, और जमीन पर उन सब आदमियों से जिनसे वो राजी है। सुलह तो है, लेकिन किन से? जिनसे वो राजी है। हर किसी से सुलह नहीं है। जो अभी भी गुनाह की जिंदगी बसर कर रहा है उसके साथ कोई खुदा की सुलह नहीं। वो सुलह का शहजादा है, वो सुलह कराने आया है। कैसे? कि जब इंसान गुनाह में घिर गया तो खुदा की और इंसान की जुदाई हो गई, तो उस जुदाई को मिटाने के लिए खुदा का बेटा आया कि सुलह करा दे। प्रेज द लॉर्ड। यही वजह है कि फरिश्ते क्या बोलते हैं? आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों से जिनसे वो राजी है सुलह। प्रेज द लॉर्ड। तो सुलह का पैगाम लेकर आया। प्रेज द लॉर्ड। जी पढ़िए आगे। जब फरिश्ते उनके पास से आसमान पर चले गए तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा कि आओ बैतलहम तक चलें और ये बात जो हुई है और जिसकी खुदावंद ने हमको खबर दी है देखें। यीशु के पैदा होने के सबसे पहले जो मनादी करने वाले, फरिश्तों के बाद जो मनादी करने वाले हैं, ये चरवाहे हैं जी। बस उन्होंने जल्दी से जाकर मरियम, किन्होंने? चरवाहों ने क्या किया? उन्होंने जल्दी से जाकर। जी खुदा का शुक्र है, खुदा ने मुझे अच्छी तरतीब दी है कि पहले मैं बयान करता हूँ फिर उसकी तस्दीक बाइबल मुकद्दस से करवा लेता हूँ। कैसा अच्छा लगता है कि जब इंसान खुद बोलता जाए तो ऐसा लगता है शायद अपनी मर्जी से कुछ बोल रहा है। तो बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा जी? उन्होंने जल्दी से जाकर क्या किया? मरियम और यूसुफ को देखा। यीशु को देखने के लिए कितने बेताब हैं। क्या कर रहे हैं? जल्दी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जल्दी। मुलाकात कैसे है? मुलाकात कैसे है? किसको देखने जा रहे हैं? तो फिर क्या कर रहे हैं? जी? जल्दी। और हम सोच लें, पहले घर से लेट निकलते हैं, मुलाकात कहाँ करने जा रहे हैं? यीशु से। 10 बजे का टाइम तो आते कब है? 11+11 से ऊपर। और यहाँ पे फरिश्ते क्यों इनके पास आते हैं? इसलिए कि ये देर नहीं करते, ये जल्दी करते हैं। मुलाकात कैसे है? यीशु। देखना किसको है? यीशु को। तो फिर 5 मिनट लेट भी चल जाएंगे तो कोई मसला नहीं। जल्दी मुलाकात यीशु से करनी है। तो फिर हमें भी जल्दी करने की जरूरत है कि नहीं? जब खुदा के घर में आना हो तो जल्दी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? मैं बोलता हूँ, जो बोलते हैं कि चर्च में आने के लिए जल्दी करनी चाहिए, हाथ खड़ा। प्रेज द लॉर्ड। सारे ही चाहते हैं, खुदा का शुक्र अदा करते हैं। चलें, यीशु सारी रुकावटें दूर करे। आमीन जी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने जल्दी की। जी पढ़िएगा। बस उन्होंने जल्दी से जाकर मरियम और यूसुफ को देखा और उस बच्चा को चरनी में पड़ा पाया, और उन्हें देखकर वो बात जो उस लड़के के हक में उनसे कही गई थी मशहूर की। और सब सुनने वालों ने इन बातों पर जो चरवाहों ने उनसे कहीं ताज्जुब किया। मगर मरियम
इन सब बातों को अपने दिल में रख कर गौर करती रही और चरवाहे जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब कुछ सुनकर और देखकर खुदा की तमजीद और हम्द करते हुए लौट गए। शुक्रिया जी। यीशु से मुलाकात करने के बाद वो चरवाहे कहाँ गए? लौट गए, वापस चले गए। इसी वक्त जब चरवाहों के पास फरिश्ता आया है और फरिश्ते के बाद फरिश्तों का गौल आया है, सेम उसी टाइम पूरब में एक सितारा दिखाई दिया। पूरब में एक सितारा दिखाई दिया। तो अगर हम मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस उसका पहला बाब पढ़ें, दूसरा बाब पहली आयत से, तो उसमें लिखा है कि जिस वक्त ये फरिश्ते इनके पास आ रहे थे, गुडरियों के पास, चरवाहों के पास आए थे, उसी वक्त एक सितारा दिखाई दिया था। जी पढ़िएगा। जब यीशु हेरोदिस बादशाह के ज़माना में यहूदिया के बैतुलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए हैं। पूरब से हम उसे सिजदा करने आए हैं। पूरब से हम उसे सिजदा करने आए हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम स्टार इसलिए अपने घरों पे लगाते हैं कि जो वो सितारा था वो मजूसियों के लिए मशले राह बना और रास्ता दिखाता गया वहां तक, वहां पे जाके ठहर गया जहां पे यीशु मौजूद था। तो हम क्या करते हैं, हम अपने घरों पे इसलिए स्टार लगाते हैं कि इस घर में यीशु मौजूद है। और गालियां फिर होती, लड़ाई झगड़ा फिर उधर। ये क्या बात हुई? ऊपर स्टार लगा रहे हैं और नीचे ज़ाहिर कर रहे हैं कि यीशु इस घर में है। तो फिर नगमों की, फिल्मी नगमों की आवाज़ तो नहीं आनी चाहिए, लड़ाई झगड़े की आवाज़ें तो नहीं आनी चाहिए उस घर से, क्योंकि अगर वहाँ यीशु मौजूद है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु की पैदाइश पे किसको खुदा ने इस्तेमाल किया? आसमानी फरिश्तों को। और यीशु की पैदाइश की खुशखबरी देने के लिए किसको इस्तेमाल किया? सितारों को। आसमानी निशान दिए। खुदा का शुक्र अदा करते, क्योंकि वो खुद आसमानी है तो उसके लिए इस्तेमाल होने वाली सारी चीजें भी आसमानी है। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का शुक्र अदा करते हैं। सब का सारा का फिर लिखा है उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। हमारा यीशु निजात दहिंदा है। हमारा यीशु निजात दहिंदा है। खुदा का शुक्र अदा करते हैं। आइए फिर अपने निजात दहिंदा को आज ही ले लेंगे। अपनी आंखों को बंद करेंगे, खुदा का शुक्र अदा करेंगे। आज के सुने हुए कलाम पर गौर करें। शरा अला सफल रूसो यही गुरुबारा कंबला रखा मेरा सुन यही बोलो रे सफला रा सारा को बरका पूरा करा। आइए हम सब अपनी आंखों